हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. This petition has been filed by the Excise and Taxation Department, Punjab, Patiala against the award dated 22/2/2018, passed by the presiding officer, Industrial Tribunal, Patiala. Full stop para. The respondent workman served as a part-time चौकीदार with the Excise and Taxation Department, Patiala, from 31/8/1992 onwards, full stop. His services were terminated on 1/10/1996, full stop. MW1 Prakash Singh, ETO, while appearing on behalf of the department, deposed in the witness box that the respondent/workman was appointed as part-time chowkidar as contingency paid staff with effect from 31/8/1992 on purely temporary basis for 89 days, full stop. The arrangement continued from time to time till termination, full stop. There is no dispute with regard to the period of service, full stop para. However, Mr. Jasleen Sidhu points out that though the termination took place in the year 1996, the demand notice was served by the respondent/workman on 16/12/2002, that is, after a lapse of about 6 years, and this delay was crucial to the determination of the reference and its maintainability, and relief should have been declined on this ground, full stop para. I have considered this submission, full stop. There is no limitation prescribed in section 10 in bracket 1 bracket out in bracket C bracket out read with section 2-1 of the Industrial Disputes Act 1947, full stop. If there is delay, the tribunal at Patiala has suitably molded the relief by awarding 50% back wages from the date of demand notice and not from the date of termination, full stop para. As far as the validity of the termination order is concerned, a finding of fact has been returned that departure was effected in violation of the provisions of section 25-F of the Act, as neither notice nor 1 month's wages in lieu of notice and retrenchment compensation was paid at the time of termination, full stop. Thus, I have no reason to substitute the opinion of the tribunal well taken when it is not perverse, irrational, or based on misreading of evidence, and accordingly would dismiss the petition with costs of 20,000, full stop para. However, Ms. Sidhu has implored this court not to award exemplary costs as proposed for filing the instant petition, full stop para. I have considered the submission, but keeping in view the conduct of the state while prosecuting the instant petition, seeking 6 adjournments by different law officers one after the other, I find no substance in it, full stop. The petition is patently frivolous
and apparently filed in routine, and the same deserves to be dismissed with costs as ordered, full stop. Para, the costs be deposited with the State Legal Services Authority, Haryana, within a month from the date of receiving of certified copy of this order, with amount to be recovered from those who advised the filing of the petition, full stop. Para, petition dismissed, full stop. Para, for the reasons recorded here in above, this revision petition is disposed of with the modification under point number 1 as pointed above, full stop. The executing court would reconsider the issue of interest, full stop. Over. तो दोस्तों ये हो गया है डिक्टेशन 90 की स्पीड में, ठीक है। इसमें कुछ नाम आए हुए हैं, प्रकाश सिंह, प्रकाश नॉर्मल, PR के और सर्किल, प्रकाश ETO तो पूरा लिखा जाएगा। पटियाला भी आसान है, PT अपवर्ड L, अबव द लाइन का स्ट्रोक है, ठीक है। और चौकीदार तो आप जानते ही होंगे, जसलीन अबव द लाइन J, सर्किल अपवर्ड L और N का हुक, और E की वॉवल जसलीन। सिद्धू सर्किल और D थ्रो द लाइन जाएगा, और D को काट दीजिए ताकि ध निकले, और U की वॉवल आफ्टर में, D के आफ्टर में, सर्किल D, U की वॉवल और D को कट, ठीक है, ताकि ध हिंदी का निकले। तो ये हो गए नाम वगैरह, और कोई नाम तो नहीं है इसमें। चौकीदार अगर आप लोग को पता हो तो ठीक है, वरना चे बना के के की डबलिंग कर दीजिएगा, डबल डैश चौकीदार, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कहते हैं, पंजाब हरियाणा की CPT की डेट आ गई है 18-19, 2 दिन है, एक दिन पंजाब एक दिन हरियाणा। उसमें 6 नंबर आएंगे तभी क्वालिफाई की मान समझा जाएगा, शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। सभी को वेलकम, जिन्होंने मैसेज किया है थैंक्स सर, और बिल्कुल आ गई ये डेट, तैयारी कीजिए। और आपको पिछली बार 4, इसके पहले 4 नंबर पासिंग था, मतलब क्वालिफाइंग था, अब उन्होंने बढ़ा के 6 कर दिया है। अब इससे आप समझ लीजिए कि फॉर्म कितने पड़े होंगे, मतलब काफ़ी हज़ारों की तादाद में फॉर्म पड़े होंगे। चंडीगढ़ में 3000 फॉर्म पड़े थे, जबकि सीट करीब 11 से 16 के बीच में सीट होगी जो ऑफलाइन फॉर्म डाला गया था। तो इसमें 400 सीटें हैं, 400 से ज़्यादा सीटें हैं, तो देखिए कितने फॉर्म पड़े होंगे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि CPT इनको पहले लेना पड़ा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, ठीक है। मन लगा के करिएगा प्रैक्टिस, अभी से लग जाइए। एक्सेल और वर्ड दोनों को करिएगा, कुछ भी मोस्ट प्रोबेबली एक्सेल आएगा, लेकिन वर्ड भी करके जाओ ना अब, है ना। अगर पूछ लिया तो क्या होगा, वैसे 80% एक्सेल मान के चलिए, ठीक है। तो दोनों तैयारी आपकी हो जाएगी तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है एक्सेल में, है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, 10 मिनट देख लिया करिएगा उसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी। तो डिक्टेशन आपको बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत खुशी हुई, आप सबको धन्यवाद। और ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। चुपचाप बिना बताए चुपचाप लग जाइए, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डिक्टेशन लेते रहिएगा, क्योंकि भले 10-15 दिन बाद शॉर्ट हैंड की डेट आए एग्ज़ाम की, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट हैंड रेगुलर करते रहना है, क्योंकि एक्सेल में कोई पूरा दिन या 2-4 घंटे 6 घंटे अगर देता है तो गलत करता है, ठीक है। इतना एक्सेल में कभी टाइम नहीं दिया जाता है और ना दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छा एक कमेंट था एग्जिबिट और एक्सटर्नल वाला डिक्टेशन में, EX का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एग्जिबिट का मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स किसी फाइल के साथ लगाए जाते हैं, जैसे एनेक्सर्स उनको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की गाड़ी पकड़ा गई है चेकिंग के वक्त, अब उसको अपनी गाड़ी निकलवानी है, तो उसका जो वकील होता है वो उसकी फ़ाइल के साथ एक अटैचमेंट फाइल कर देता है, ड्राइविंग लाइसेंस का या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर का, ठीक है। तो उस अटैचमेंट को एग्जिबिट कहा जाता है। तो लीगल मैटर्स में अगर EX आता है तो ज़्यादातर एग्जिबिट से उसका मतलब होता है, मतलब एग्जिबिट 14 का मतलब एग्जिबिट नंबर 14, मतलब कोई कागज़ अटैच किया गया है जिसका 14वें नंबर का कागज़ है वो, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होता है एग्जिबिट मतलब EX मतलब एग्जिबिट। और एक्सटर्नल अगर उसको पढ़ा जाता है तो मतलब ज़्यादातर एग्जिबिट पढ़ा जाता है, अब एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल के लिए EXT होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल किसी चीज़ को डिनोट नहीं करता है, ओके। तो ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ज़्यादातर एग्जिबिट EX या फिर एनेक्जर ही आता है, ठीक है। तो बाकी सारे तो हो चुके हैं कमेंट्स, और तो कुछ है नहीं। एकदम अच्छे से लगे रहिए अपनी तैयारी में, और कमेंट्स ऐसे करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि पता चले कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितने पानी में है। मिस्टेक्स अपनी शेयर करते रहिए। पूरा दिन है आपके पास और लगभग 20 दिन है अपनी तैयारी और अच्छे से तैयारी को धार देने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले डिक्टेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।